जी और चलो कहाँ तक करें हम लोग? 12 तक करें ना। 13th वन का आंसर कितना आया बेटा? किसी को आया? 50 volt battery is connected across a 10 ohm resistor and a current of 4.5 ampere flows. The internal resistance of the battery is how much for me? 50 volt battery है 1.1. connected across a 10 ohm resistor and a current of 4.5 ampere flows. The internal resistance of the battery will be equal to how much? आया किसी को? 1.1. 1.1. वेरी गुड। ये एक रेसिस्टर है बेटा ऐसा। To this one there is a cell connected like this. इसका हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस R, इसमें से फ्लो ऑफ करंट हो रहा है, ये हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। सो करंट फ्लो हो रहा है मेरे पास I। तो करंट कैसे लिखोगे बेटा? I इज इक्वल्स टू योर टोटल EMF डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस ऑफ योर स्मॉल r। कितना करंट दे रखा है प्रॉब्लम में बेटा? 4.5 एम्पियर करंट पूछ रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो यानी I की वैल्यू है मेरे पास 4.5 और E की वैल्यू कितनी है बेटा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E गिवन फॉर मी? 50 वोल्ट्स। इसका पोटेंशियल दे रखा है 50 वोल्ट्स और रेजिस्टेंस दे रखा है मेरे पास 10 ohms। तो डिवाइडेड बाय 10 प्लस ऑफ योर स्मॉल r। ठीक है, सो 10 प्लस ऑफ योर स्मॉल r इज इक्वल्स टू, तो कितना आ जाएगा बेटा? 10 प्लस ऑफ योर स्मॉल r इज इक्वल्स टू 4.5 10 प्लस r यानी 2/9 into 50. So R will be equal to your 100/9 minus of your 10. तो LCM easy हो गया, तो 10/9 because 9 LCM हो गया, 100 minus 90 90 से हो गया 10. So R will be equal to your 1.1. क्लियर है? चलो 13th हो गया ना, ये 12th था 13th था, ये 13th था। चलो and this one is right now 14th question. 14th one का आंसर बताओ बेटा जल्दी से। The voltage V and current I graph for a conductor at 3 different temperatures T1, T2, T3 are shown in the figure. Then the relation between T1, T2 and T3 will be equal to how much? We know the Ohm's law beta, V is equals to I into R. So this is a graph between V and I. So V by I will always gives me what beta? Resistance. The slope of your potential versus current will always gives me what beta? Resistance. That means with the increase of your resistance, temperature ऐसा भी क्या हो जाएगा? Increase हो जाएगा, isn't it? Slope किसके लिए ज्यादा है बेटा? T1 के लिए ज्यादा है, T2 के लिए कम है, फिर T3 के लिए कम है। तो temperature of T1 will be greater than, क्योंकि resistance is directly proportional to your temperature. How? Because resistance at your T degree centigrade is equals to R naught into 1 plus alpha into T2. जैसे जैसे temperature बढ़ेगा, resistance भी बढ़ेगा. So from this one I can write that T1 is greater than of your T2 and T2 is greater than of your T3. क्योंकि इसका slope theta 1 है, इसका slope theta 2 है और इसका slope theta 3. Clear है? Next one. The dimensional representation यानी T1 greater than T2 greater than T3 यानी first option इसका आंसर आ जाएगा. Clear है? चलो. The dimensional representation of the potential difference will be equal to how much? Potential difference कैसे लिखते हो बेटा? V is equals to work done divided by charge. Work done का तो फॉर्मूला मालूम है अपने को, ml square t power minus 2. Charge is nothing but of your ampere into your time. तो इसमें कुछ करते हुए दिखाई दे रहा है क्या? देखो m ऊपर है, m एज यूजुअली है, l स्क्वायर है, t पावर ये ऊपर चले जाएगा तो -3, a पावर -1, तो a पावर -1 a पावर -1 ये दो में है, L square है, t power -3 t power -3 यानी B option will be the answer. Next one, kilowatt hour is associated with electric fuel, electromotive force, electrical energy, specific resistance. किसके लिए है? Electrical energy. Electrical energy. Very good. A battery of internal resistance at 2 ohm is connected to the network of resistance as shown in figure. In order to get the maximum power to the network, the value of the small r must be equal to how much? मैंने कल ही पढ़ाया था, maximum power के लिए condition क्या है बेटा? Capital R must be equal to small r. External resistance must be equal to your internal resistance part of relation. Clear है? Is it clear? Is it clear? Yes, sir. तो इसका इफेक्टिव बताओ पहले कितना आ रहा है? आर इफेक्टिव कितना आ रहा है ये बताओ। ईएमएफ है, इंटरनल रेजिस्टेंस है मेरे पास 2m, तो क्या व्हीटस्टोन बज रहा है? ये देखो बेटा, ये अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसा ले रहा हूँ, ये R एंड R, ये कौन सा कॉम्बिनेशन बन गया? सीरीज. So this will be 2R. ठीक है? So if I am drawing this circuit somewhere like this here, ये देखो, question number 17.
यहाँ पर एक टर्मिनल है, इन दोनों के बीच में एक रेसिस्टेंस, एंड हियर देयर इज वन पॉइंट एंड हियर देयर इज वन पॉइंट, देयर इज वन रेसिस्टेंस हियर राइट नाउ फॉर दिस वन। उसी तरह से देयर इज वन रेसिस्टेंस, देयर इज वन रेसिस्टेंस हियर राइट नाउ। उसके बाद ये हो गया बीच में आर, तो ऊपर का ये हो गया आर एज यूजुअली, तो एक ही आर है। तो नीचे मेरे पास 2 आर से यहाँ पर एक आर है, फिर यहाँ पर एक आर है इस कनेक्शन पे बेसिकली। then there is one more resistance down here, it is nothing but of your 2R। ये हो गया मेरे पास your 4R, और ये हो गया एक एक रेसिस्टेंस R and R, this one is 6R, this one is R, ठीक है ना। तो this will become for me how much बेटा, so ये बीच वाला रेसिस्टेंस as it is 6R है, यहाँ पर एक टर्मिनल, यहाँ पर एक टर्मिनल, this one is nothing but R and this one is your R and R, this will be 2R and this one is also your 2R and this one will be equal to 4R। So R by 2R will be equal to your 2R by your 4R, AR चले गया, 2 1s are 2 2s are, so it is your balanced Wheatstone bridge। बैलेंस Wheatstone bridge मतलब ये बीच वाला इनफेक्टिव बन जाएगा, if that is becoming ineffective particulation। so यहाँ पर एक टर्मिनल, so ऊपर वाला रेसिस्टेंस पूरा कितना हो जाएगा बेटा, R plus 2R, that will be 3R, and down wala will be equal to 2R plus of your 4R, so this will be equal to 6R। this is connected to an external source of your battery। ऐसे ही होगा ना बेटा, क्लियर है सभी को, ठीक है। एंड दिस टू विल बी इन विच कॉम्बिनेशन बेटा, ये दो कौन से कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं। तो 1 by R effective will be equal to your 1 by 3R plus 1 by 6R, यानी R effective will become for me how much बेटा, 6R into your 3R divided by your 6R plus of your 3R। आया सभी को, कितना आ रहा बेटा, 18R square divided by 6, 9R, AR गया, 9 1s are 9 2s are 18, यानी ये बन गया मेरे पास 2R। so R effective will be equal to your how much बेटा, 2R। तो कैपिटल R effective must be equal to small r। so small r कितना दे रखा है बेसिकली प्रॉब्लम में, देखो how much he has given for me, internal resistance is given as of your 2 ohms। so R effective is 2R, that is equals to your internal resistance कितना दे रखा है बेटा, ये R effective कितना है मेरे पास 2R, this must be equal to your small r is equals to 2, so ये 2 चले गया, तो R will be equal to your 1 ohms। clear है, so what must be the answer for this one, so it should be 1 ohm। so in order to give the maximum power of the network, the value of the small r must be equal to 1 ohms। clear है, is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Very good। चलो, question number 18, what is the equivalent resistance between P and Q in the circuit for the figure? चलो जल्दी से बताओ, P and Q के बीच में रेसिस्टेंस, सॉरी P and P के बीच में इफेक्टिव रेसिस्टेंस, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन P and Q, ये तो आ गया होगा सभी को। दिस वन इज R and R, दिस वन इज R and as well as of your R, तो क्या कॉम्बिनेशन होगा जल्दी से बताओ, व्हाट विल बी द आंसर बेटा, दिस टू विल बी इन विच कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो R प्लस R ये कितना हो गया, हमें ऑडिबल, Yes, sir. चलो R and R कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, ये भी R है, ये भी R है, so this will become for me series, that is 2R। this 2R and R are in which combination beta, parallel, become for me 2R into R divided by your 2R plus of your R, ये हो गया 2R into square plus of your 3 into your R, square R चला गया, so this will become for me 2R by your, so that 2R by 3 is in series with your R and R, तो R effective कितना बन जाएगा बेटा, R equal to R plus R, that is R plus 2R by 3 plus R, 8R by 3. so this will be your 8R by 3। 8/3. ठीक है, EMF ऑफ द क्वेश्चंस देखो 99.99% आपके इस बार यही ऐसे ही रहेंगे, सिंपल रहेंगे, बट ओनली थिंग इज आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, बड़े बड़े क्वेश्चंस अब बिल्कुल मत करो इसके अंदर। EMF ऑफ द सेल गिव्स मी व्हाट बेटा, कोई बता सकता है, EMF ऑफ द सेल इज नथिंग बट व्हाट, energy charge, energy by charge force।
Energy by charge. Energy by charge. वेरी गुड, मैं वो समझ रहा था आप लोग एनर्जी बोल देंगे बोल के। एनर्जी बाय चार्ज, क्योंकि ईएमएफ इज नथिंग बट पोटेंशियल ना बेटा, सो पोटेंशियल इज Potential, sir. इक्वल बाय चार्ज, सो इट इज एनर्जी बाय योर चार्ज। वेरी गुड। चलो 20, a dry cell has an EMF of 1.5 volt and internal resistance of 0.05 ohms. The maximum current obtained from this cell for the short interval of your time will be equal to how much? कोई बता सकता है? मैक्सिमम करंट, ड्राई सेल है मेरे पास, सेल का ईएमएफ है, ये एक सेल है इस तरह से, इसका ईएमएफ है 1.5 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, स्मॉल r is equals to 0.05 and current obtained from this cell, the maximum current obtained from this cell for the short interval of your time, इसमें से करंट निकलेगा I, तो I will be equal to how much बेटा? टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। ईएमएफ कितना है? 1.5, इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.05, कितना आ जाएगा? 1.5 amperes. by 0.0 कितना आएगा? 30, sir. 30 amperes. Very good, 30 amperes. Then which part of the curve represents a negative resistance? Resistance का फॉर्मूला अपने C to D, R is sir. CD. delta V divided by delta I. तो क्या आंसर आएगा? A to B स्लोप पॉजिटिव है, C to D नेगेटिव है, E to F पॉजिटिव है, isn't it? ये I वर्सेस V ग्राफ है, V वर्सेस I ग्राफ नहीं है, ये है कि नहीं? C to D, sir. C to D. Very good. C to D is the answer. Next one. In the given network, the equivalent distance between P and Q. कोई बताएगा? Wheatstone. Which one बन रहा है ना? 1, 2, 3, 4. बन रहा? R by R. Sir, R by 2. R by 2. Very good. This will be ineffective. This 2 will be in which combination beta? Series. That is your 2R. This 2R. series that will be equal to your 2R. ठीक है ना? Is it clear? Yes, sir. जी sir. Upper part of a circuit क्या हो जाएगा बेटा? R, sir. R आ जाएगा। R and R will be what beta right now? Parallel. तो R effective कितना R बन by जाएगा 2. between P and Q? That will R be by 2. by 2. आया सभी को? ठीक चाहे है। कुछ कान तो भी इज्जत रख लेना। Don't try to talk बेटा, आप लोग के वॉइसेस रिकॉर्ड होते जाते रहते प्लीज। चलो 23. In the figure, all the bulbs are identical. The bulb that lights most brilliantly is 1 only, 2 only, 2 and 4, 1 and 5. बल्ब 1 है यहाँ पर 2, 3, 4 and 5. बोलो जल्दी से क्या आंसर होगा रीजन के साथ? Two only. कैसा बेटा? देखो यहाँ से करंट आ रहा है बेसिकली, isn't it? करंट यहाँ पर आया तो मैक्सिमम चलेगा 1, sir. 1. और Because in the first one, maximum current is flowing, and then it's get like गेटिंग डिवाइडेड यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ divide. डिवाइड हो गया, फिर ये डिवाइड होके फिर यहाँ पर आ गया सेम करंट। 5 में भी सेम करंट ही जा रहा है ना बेटा, I में फर्स्ट में कितना करंट जा रहा है, 5 में भी उतना ही करंट जा रहा है, तो 1 and 5 मस्ट बी द आंसर। क्लियर है? yes, sir. चलो 24. The resistance are connected in series across a battery and consumes a power P. If these are connected in parallel, then power consumed will be equal to or how much? ये बोलो जल्दी से। 2P. कितना? 2P. नहीं होता। Two resistance are connected in series across a battery and consumes a power of your P. Okay. Sir, P by 2. पास मतलब पावर कैसे लिखोगे? In terms of your battery, P is equals to V square divided by 2 into R. Because two resistance are connected in series ना बेटा, P is equals to V square by R effective. R effective मतलब 2 into R and consumes a power P. Now if these are connected in parallel, okay, if these are been connected in parallel, then power consumed will be equal to your how much? तो इसमें देखो अगर if they are connected in your parallel, तो P dash कितना बन जाएगा बेटा? P dash will be equal to your V square resistance will be R by 2. ठीक है ना? तो इसमें से मैं V square by R निकाल सकता हूँ। V square by R will become for me how much बेटा? V square by R will become for me 2 times of your P. तो यहाँ पर P dash कैसे लिख सकता हूँ मैं? P dash is equals to 2 times of your V square by R. V square by R, ये 2 इधर चले जाएगा तो कितना बन जाएगा बेटा? 2 into 2P, यानी ये बन जाएगा 4P. So that will be 4P. Clear है? Sir, once Yes, again, please. P dash वाला part. देखो यहाँ पर
पहले जब पावर था इन टर्म्स ऑफ योर रेसिस्टेंस इट इज P इज इक्वल्स टू V बाई R इफेक्टिव, ये फॉर्मूला था. सो इट इज V स्क्वायर, दो सीरीज में तो इफेक्टिव कितना आ गया 2R. जब पैरेलल में बन गया तो P डैश इज इक्वल्स टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R इफेक्टिव बन गया मेरे पास R बाई 2, यानी ये बन गया 2 इंटू V स्क्वायर बाई R. इसमें से मैं V स्क्वायर बाई R निकाल रहा हूँ. V स्क्वायर बाई R इज इक्वल्स टू 2 times of P. So this will be equal to your 2 into V square by R is nothing but 2 into P. That will be equal to 4 times of P. Clear है? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Next one. If the strength of the current decreases by 4%, then the power of the bulb will decrease by nearly. ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है. Very good. 8%. आया सभी को? 8%. Yes, sir. P is equals to your I square into R. तो P dash will be equal to how much बेटा? कितना परसेंट डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ ये बताओ? डिक्रीजेस बाय 4%, यानी 100 में से 4% निकाल रहे हैं. 100 मतलब मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर देखो, मैक्सिमम I ले रहा हूँ. I में से अगर मैं इसको क्या होगा या I में से मैं 4% निकाल रहा हूँ. दैट मीन्स 4 इंटू योर I डिवाइडेड बाई योर 100 इंटू योर होल स्क्वायर इंटू R, यानी ये हो गया मेरे पास I स्क्वायर इंटू R. बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दो, इसको विल बिकम फॉर मी 1 बाई 2 इंटू योर 4. 2 into 4 divided by 100. 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो. So it is 8 by your 100. So ये बना कितना मेरे पास I square into R into 1 minus 8 by your 100. परसेंटेज निकालने का मेथड P minus of P dash divided by your P into your 100. That is equals to P minus of P dash कितना बनेगा बेटा? I square into R can be written as of your P. So this will become for me how much बेटा? 8 by your 100 into your 100. ये वाला चले गया. So this will become for me 8% because I into R square will be equal to how much बेटा? P. ठीक है ना? So P dash minus of P मतलब ये कितना हो जाएगा? 8%. क्लियर है सभी को? Is it clear? Yes, sir. Sure. Next one. Very good. If the तो कितना है? 8%. If the voltage across the lamp decreases 5%, then the power output decreases by. आया किसी को? 5 only. कितना? If the voltage across the lamp decreases 5%, voltage अगर decrease हुआ 5%, then power output decreases by how much is asking? 10. 10%. ऐसा? V square by R. P is equals to V square by your R. Isn't it? P is equals to Yes, sir. Error analysis, sir. Delta P by. हाँ तो पहला में एक्सपेंशन लगा के कर सकते हो. पोटेंशियल कितना डिक्रीज हुआ बेटा? 5%, यानी V minus 5 by 100 times of V. तो कितना हो जाएगा बेटा? V कॉमन हो गया 1 minus 5 by 100. So that will be equal to 20. 19 V by 20 आ जाएगा. So power will be equal to P dash is equals to V dash square divided by R. And this one is 19 into your, this will become for me how much? V dash is V divided by 20 whole square divided by your R. ठीक है. So for decrease in percentage सर निकाल. ये एरर एनालिसिस मेथड से भी कर सकते हैं ना सर? हाँ एरर मेथड से भी कर सकते हैं. 10 2 into times of delta R भी लिख सकते हो बेसिकली डायरेक्टली. जी सर. Isn't it? Because power percentage lesser than 10% है तो डायरेक्टली बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के 2 times से मल्टीप्लाई करो. That will give me the answer directly. ठीक है. यस सर. परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है बेटा? P minus of P dash divided by P into your 100 कर दो. So that will give me your 10%. ठीक है. 26 हो गया. 27. Which of the following graph best represents the variation of the thermo EMF of the thermocouple? ये तो नहीं है अपने सिलेबस में, लोग भी कर दो. A dynamo develops a 0.5 ampere at 6 volt. The energy which is generated in 1 second will be equal to how much? A dynamo develops 5 amperes at 6 volt. बताओ कोई. A dynamo develops 0.5 ampere 6 volts. Energy will be equal to how much? Energy का फॉर्मूला E is equals to V into I into T. पोटेंशियल कितना है मेरे पास? 6 वोल्ट. करंट कितना है? 0.5 यानी 1/2. हाउ मच? इन 1 सेकेंड. तो आंसर आया कितना? 3 joules. आ गया. This one will be your 3 joules. When a current flows through a conductor, its temperature increases, decreases, remains same. May increase or decrease? Increase. When current flows through a conductor, heating of a conductor will take place better, which will raise the temperature of the conductor. So it will be increasing. Yes sir. Temperature increases. Temperature increases.
Heat produced in a wire of resistance R due to the current flowing at a constant potential difference is proportional to your how much? Heat produced in a wire. Heat produced. R, sir, directly R. proportional to Yeah, R. H is equals I to square RT. I square RT. I square H is equals to I square RT, so it is directly proportional to R. heat produced in a wire of resistance R due to current flowing at a constant potential difference. Constant potential difference में लिखना है. H is equals to V into I into T. That is equals to V. I को भी हम लोग को करंट में पोटेंशियल में लिखना है. So it is V by your R into your T. तो ये बना कितना? V square by R into T. So H is inversely proportional to R. गए 4 मार्क पानी में. Yes, sir. H is inversely proportional to your R. Appliances based on heating effect of a current works on. Appliances will work on heating effects of a current will works as only on AC, only on DC, both AC and DC. None of this. It will work both on AC and DC. जैसा अपना मोबाइल फोन है, चार्जिंग होने के बाद क्या होता है, वो डिस्चार्ज होता है ना. तो डायरेक्ट करंट मतलब अपने स्विचेस, मोबाइल फोन्स वगैरह में जो करंट होता है अल्टरनेटिंग करंट होता है बेसिकली. ठीक है, चलो. द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस वाज फर्स्ट गिवन बाय, ये तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है आप लोग. Faraday. ठीक है ना, वो तो अपने फिलहाल नहीं छोड़ दो बेसिकली. Next 133. In charging a battery of a motor car, which of the following effects of the current is used? Magnetic, chemical, heating, induction. Magnetic. Heating. In charging a battery, अपने पास घर में अगर कार है, कभी डाउन हो गई तो आप कार को चार्जिंग कराते हो कि नहीं कराते हो? टू व्हीलर को भी अगर आपके पास स्कूटी वगैरह है, कभी डाउन हो जाती है तो भी इसको आप चार्जिंग कराते हो कि नहीं कराते हो? केमिकल एनर्जी ना बेटा, बैटरी पानी वगैरह डाल के हम लोग उसको रिचार्ज करते हैं. ठीक है ना, केमिकल एनर्जी. इन चार्जिंग ए बैटरी, मोटर कार, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स. कभी बानट खोल के देखो कार का, बैटरी दिखाई देगा उसके अंदर. केमिकल प्रोसेस. इफ द लेंथ ऑफ द मेटालिक वायर बिकम्स n टाइम्स, इट्स रेजिस्टेंस बिकम्स हाउ मच? If the length of the metallic wire becomes n times, its resistance becomes how much? Resistance का formula R is equal to L divided by your A. कितना बेटा? Volume of the wire will always remain constant, so volume will be equal to how much better? Length into area, isn't it? Is that clear? Sir, is it n square? Yeah, it is n square. आया कैसा? क्योंकि एरिया को मतलब एरिया को वॉल्यूम और लेंथ के टर्म्स में लेके हाँ, volume of the wire will be equal to what better? Length into your area, isn't it? Is that clear? The length of the metallic wire becomes n times, its resistance becomes how much? अगर लेंथ हम लोग का n times of L हो गया, बढ़ गया, तो एरिया क्या हो जाएगा? उतना ही टाइम कम हो जाएगा, A by N. तो रेजिस्टेंस बन गया मेरे पास R dash is equals to rho into your N into your L divided by A by your N. ये बन गया मेरे पास N square rho into L divided by your A. यानी this will become for me N times N square times of your R. ठीक है, स्टार्टिंग में पढ़े हो गए बेटा, कितने बार नहीं पढ़े आप लोग? Yes. When some impurity is added in the conductor, its resistivity increases, decreases, remains the same. First increases, then decreases. Resistivity increases when some impurities are being added, so it will be increasing. If the area of cross section of the metallic wire becomes n times, then its resistance becomes how much for me? If the area of cross section of the metallic wire is becoming n times, यानी volume will be equal to length into your area. अगर हम लोग ने एरिया को n टाइम्स कर दिया तो लेंथ विल बी इक्वल टू मच फॉर मी 1 by n टाइम्स बन जाएगा. तो रो डैश विल बी इक्वल टू, बिफोर कटिंग r is equal to रो into l by your a. Afterwards रो डैश will become for me रो into l dash. L dash is nothing but how much for me बेटा? L into n into your a divided by your l. So this one and this one will get cancelled. तो कितना आएगा बेटा, कोई बता सकता है? रो इंटू एल इंटू योर ये एरिया कौन सा गया है? सॉरी, कुछ गलत बोल दिया. 1 by n square. हाँ, तो रो इंटू योर ये हो गया मेरे पास, दिस वन इज नथिंग बट ऑफ योर एल डैश डिवाइडेड बाय योर ए डैश. यानी रो इंटू एल डैश बनेगा एल बाई एन
और a dash will become for me your n times of your a, यानी ये बन जाएगा rho into your l divided by n into n. This will become n square into your a. So this will become for me r by n square. So it will become for me 1 by n square. ठीक है, चलो. The conductor behaves as a superconductor at very high temperature, moderate temperature, room temperature, very low temperature. At very high temperature. Sir. no, a conductor will behave as a superconductor at your very low temperatures. Thermistors, very low temperatures. D. Starting में graphs वगैरह देखो, NCERT में लिखा हुआ है. If you have n identical conductors, then the number of possible combinations will be equal to how much? If we are having n different conductors beta, the number of possible combinations will be 2 power of your n. If you are having the different conductors, n identical hai and each is having equal resistance, then the number of combinations will be equal to how much beta? 2 to the power of n minus 1. So answer क्या होना चाहिए? If we have n different conductors, then the number of possible combinations हम लोग कितना बना सकते हैं? 2 to the power of your n. ठीक है, आइडेंटिकल रहा है तो क्या कितना बनाओगे? फॉर्मूला याद है, 2 to the power of n minus 1. फॉर आइडेंटिकल लिख लो आप लोग, कहीं याद नहीं रहा तो. डिफरेंट के लिए 2 to the power of n और आइडेंटिकल के लिए 2 to the power of n minus 1. ठीक है, चलो. द नंबर ऑफ क्लोज्ड सर्क्यूट्स इन द व्हीटस्टोन ब्रिज इज, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मैक्सिमम गलती करके आते हैं आप. द नंबर ऑफ क्लोज्ड सर्क्यूट्स इन द व्हीटस्टोन ब्रिज इज 4. मेरे को मालूम था. गए 5. और बोलो, और बोलो. 4 और 5, 7. 4 और 5 कौन है? कितने जने हैं? 4. 4 और 5. किसी का आंसर? 4. और 4 और 4 और और देखो, यहां से स्टार्ट हो तो यहां से यहां तक एक क्लोज सर्किट हो गया, यहां से यहां तक का एक क्लोज सर्किट हो गया, यहां से यहां तक एक क्लोज सर्किट हो गया, फिर यहां से यहां तक एक क्लोज सर्किट हो गया, फिर यहां से यहां तक एक क्लोज सर्किट हो गया, फिर यहां से यहां तक एक क्लोज सर्किट हो गया. कितने बने पूरे? 6. 7 बने ना बेटा? 6 7 पूरा क्लोज सर्किट होना है बेटा. ऊपर ही अपने को 2 हो गए, ठीक है ना. फिर पूरा ऊपर से सर्किट नीचे 3, नीचे से 4, फिर ये पूरा एक 5. ठीक है, इज इट क्लियर? बैलेंस सर्किट का 7. क्लियर फॉर एवरीवन? नंबर ऑफ क्लोज्ड सर्किट्स इन व्हीटस्टोन ब्रिज इज ऑलवेज 7. अगर याद नहीं है तो याद रख लो, अगर आया तो डायरेक्टली लिख के आओ, 4 5 मत लिख के आओ. चलो. Potentiometer is an ideal voltmeter, ammeter, all the above. Voltmeter. The resistance of the following circuit between P and Q. देखो कितना सिंपल क्वेश्चन, आप लोग पूरा साल पढ़े फिर भी व्हीटस्टोन का ब्रिज का क्वेश्चन आप छोड़ के आ जाते अगर ऐसा आ गया तो, वरना नेगेटिव मार्क लेके आते. एक तो 4 का 4 जाता, उसके साथ 1 भी जाता तो 5 मार्क्स चले जाते सीधा से. The resistance of the following circuit between P and, कल के दिन अगर खुदा ना खासा ऐसा क्वेश्चन आ गया तो अपन सेफ साइड में रह जाएंगे. चलो भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ ना कुछ तो भी काम आया बोल. चलो. The resistance of the following circuit between P and Q will be equal to, कोई बताएगा? पहले व्हीटस्टोन हो रहा नहीं हो रहा है चेक कर लो. व्हीटस्टोन हो रहा है ना? व्हीटस्टोन हो रहा है कि नहीं हो रहा? Yes, sir. This will become ineffective. This two will be in series. This two will be in series. 2 plus 2, this will be 4 ohms. This will be 4 ohms. 4 and 4 will be in parallel. So 4 by 2, this will be equal to 2. Then this 2, this 3 by 2. series, that will be equal to 6. 6 and 2 will be in parallel. ठीक है, 6 into 2, 6 plus 2, तो 6 are 12 plus 6 8, यानी कितना बन जाएगा? 3 by 4. 3 by 2 ना? 3 by 2. 3 by 2. 3 by 2. आया समझ में? फिर एक बार बतलाऊं. नहीं सर, आ गया. आ गया ना? ये तो ये पूरा 2 ohms है बेटा, है ना. ये 2 और ये 2 तो 6 हो गए, और 6 और ये 2 के साथ पैरेलल हो गए. ठीक है ना, ये ऐसा कुछ आया था. ये 6 आ जाएगा और यहाँ पर ये Q है और यहाँ पर ये P है और ये 2 है, तो ये 2 पैरेलल हो गए. ठीक है.
The smallest resistance that can be obtained by the combination of n resistors, each of resistance capital R is how much? R by N. Very good. R by N. 6 equal resistance each of 2 ohms are connected to form a closed network as shown in figure. The resistance between any two corners will be equal to your how much? जल्दी से बताओ. पहले Wheatstone bridge हो रहा नहीं हो रहा Sir, देखो. two, sir. So this will Yes, be sir. Wheatstone bridge. Wheatstone bridge हो रहा है. 2 plus 2 4. ये भी हो गया 4. So 4 by 2. 1. 2 and 2 will be in parallel. So it will be 1. Yes, sir. One. 1. ठीक है. The effective distance between P and Q. The effective distance between P and Q. कितना आया? Two R by 3. 2R by 3. Very good. आया 2R by 3. क्योंकि बेटा अगर ये पॉइंट Q है तो ये पॉइंट भी Q होगा, है कि नहीं? बिकॉज दे आर कनेक्टेड बाय सेम वायर. ये दो कौन से कॉम्बिनेशन बन गए? पैरेलल. देयर इज डिवीजन ऑफ ए करंट. तो पैरेलल मतलब कितना? 2R डिवाइडेड बाय 2. तो ये कितना हो गया? R. ठीक है. तो ये हो गया एक रेजिस्टेंस यहाँ पर P, ये हो गया R, और ये हो गया यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मेरे पास, ये हो गया मेरे पास पॉइंट ले रहा हूँ मैं सम, ये पॉइंट मान के चलो ए ले लिया मैंने, ये हो गया पॉइंट ए, और ये हो गया पॉइंट क्यू, और ये भी हो गया मेरे पास R, और यहाँ पर भी हो गया दिस वन इज R. सो दिस R एंड दिस R विल बी इन सीरीज. तो ये कितना हो गया? 2R एंड R विल बी इन पैरेलल. तो ये हो गया यहाँ पर 2R और नीचे हो गया R. So the resistance across your P and Q will be equal to 2R into R divided by 2R plus of your R. So it is 2R square divided by 3R. R square R चले गया. So it is 2R by 3. आया सभी को? Yes, sir. Clear है? चलो, very good. What is the effective resistance between P and Q in the circuit? P and Q के बीच में, यहाँ पर point P है और यहाँ पर point Q है. चलो जल्दी से बताओ. R by 2. Which what is the effective R resistance? by कितना? R by 2. नहीं बता. R by 3. 2R by 5. 2R by 5 आएगा बेटा. ये देखो ये दो कौन से कॉम्बिनेशन में? पैरेलल में, isn't it? ये अर्थिंग मतलब क्या है? डायरेक्टली ऐसा कनेक्टेड है. तो कितना आ जाएगा? ये बन जाएगा एक रेजिस्टेंस यहाँ पर R by 2, और ये नीचे एक रेजिस्टेंस बनेगा R plus R. दिस विल बी इक्वल टू 2R. तो दोनों कौन से कॉम्बिनेशन बन गए? ये हो गया P और ये हो गया Q. कौन सा कॉम्बिनेशन बन गया? पैरेलल. सो रेजिस्टेंस अक्रॉस योर P and Q विल बिकम हाउ मच फॉर मी बेटा? R by 2 into your 2R divided by R by 2 plus of your 2R. ठीक है. तो यहाँ से 2 चले गया, तो ये बना कितना मेरे पास ऊपर? R स्क्वायर डिवाइडेड बाई R जो कॉमन हो गया तो 1 by 2 प्लस 1 कितना? 5R by 2. सो ये 2 चले गया, तो ये कितना आ जाएगा? 2R by your 5. सो 2R by your 5. क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes, sir. Sixth one. In a balanced Wheatstone network, the resistance in the terms of the Q and R are interchanged, and as a result, the network is still balanced. The network is not balanced. The galvanometer shows zero deflection. The galvanometer and the cell must be interchanged for balancing. Not balanced. Not balanced. The network is not balanced. Very good. क्योंकि interchange करना पड़ेगा ना बेटा, because P by Q is equal to R by S है. अगर P and Q and R में I have the same value. अगर Q and S को आपने interchange कर दिया, then P by S will be not equal to R by S. So the network is not balanced. समझ में आ गया? ये देखो बेटा, P by Q is equals to R by S. ये balance condition है ना बेटा. अब आपने क्या कर दिया? Q and S को आपने interchange कर दिया. Q and S को आपने interchange कर दिया, यानी ये हो जाएगा P by S और ये हो जाएगा R by Q. तो ये तो इक्वल नहीं होंगे ना. ठीक है? Is that clear? Yes. So the network is not balanced. चलो next one.
In the circuit given below, the reading of the ammeter and voltmeter will be equal to how much? Very good question. Let me see how many of you will give me the answer. Ammeter क्या read करेगा? Current. Voltmeter? Potential. करंट बताओ जल्दी से. आर इफेक्टिव कितना है पहले ये बताओ. इज देयर एनीवेयर डिवीजन ऑफ करंट? यहाँ पर आया तो ये करंट इसमें गया, इसमें यहाँ पर गया, फिर ये चले गया, फिर ये चले गया, 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 चले गया. सो 6 and 4 में करंट डिवाइड नहीं हो रहा. सो टोटल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा? 6 + 4 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर 1 ओम है, तो कितना आ गया? 11 ohms. तो करंट कितना हो जाएगा? I is equals to V/R. V कितना है? 6/11 एम्पियर्स. 6/11 एम्पियर्स किसमें है करंट? बी ऑप्शन. तो सेकंड वाला आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है कि नहीं? वोल्टमीटर का रीडिंग V is equals to I into R. टोटल रीडिंग ऑफ द करंट कितना है बेटा? 6/11 into V is equals to I into R. V is equals to I into R ही ना. Voltmeter is nothing but of your potential difference. V is equals to your I into your R effective. R effective कितना है मेरे पास? I 11 ohms. क्या बोले? 11 ohms R effective है sir. R effective is nothing but of your 11 ohms. लेकिन आज 11 ohms बोले तो 11 कट जाएगा. V is equals to 6 आएगा ना, तो 6 तो दिया नहीं. Voltmeter will read the potential difference across your, ये टर्मिनल यहाँ पर है, यहाँ पर है. So it will read the potential across this 6 and 4 only ना बेटा. It will read the potential across 6 and 4 यानी 10. So this will be 10 here. Yes sir. This will be 10. So it is 60/11. B option. चलो. Identify the set in which of the three substances are the good conductors of electricity. यहाँ पर भी मिस्टेक करके आते हैं बच्चे. D. तो हम लोग को D, good D. conductor हम लोग को मालूम है. प्लास्टिक तो नहीं होगा तो छोड़ दिया. कॉपर, सिलिकॉन. सिलिकॉन इज व्हाट? Option D sir. वेरी गुड. सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर. ये भी नहीं होगा. Semiconductor. चलो नेक्स्ट वन कौन सा है? वुड. वुड इज आल्सो बैड कंडक्टर. सो ओनली ऑप्शन इज कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड. डी. But sir gold. हाँ, अब दो. Electricity. प्लास्टिक तो गुड कंडक्टर नहीं है ना बेटा. डायमंड में तो सेमीकंडक्टर. ये भी नहीं होगा. वहां पर कॉपर है. Ag is nothing but what? Silver. Au is what? Gold. Then so the conducting है ना बेटा. Copper is also conductor. Yes sir. गोल्ड में क्या करंट नहीं फैलेगा? आपके पास अब अगर कभी घर में ब्लास्ट अगर तो पेन तो हो गया ना, गले में चेन वगैरह, हाथ में चेन वगैरह होती है, कभी लेके जाके सर्किट में डाल के देखो करंट मारता है नहीं मारता? गोल्ड है मेरे को नहीं मारता बोल के पकड़. After 12th September sir. हाँ वो काम करो. सीट अगर आ गई तो ना मत डालो, सीट नहीं आई तो पहले वो काम करो. ठीक है. गोल्ड चेन वगैरह जो भी है लेके जाओ, सर्किट में डालते जाओ, देखो कि आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा नहीं आ रहा. आया तो अच्छी बात ही, नहीं आया तो साफ झूठा गलत बोल दिया. हो गई बात, टेंशन ही नहीं. चलो ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह. मैक्सिमम कोशिश करें कि थोड़ा बहुत तो भी आ जाए. 100-110 आ जाए. बायोलॉजी आप लोग 330-340 मार ले. केमिस्ट्री 120-130 मार ले. एटलीस्ट 540-560 एवरेज आए सभी को. और 600-700 आए तो मिठाई के डब्बे तो आना ही आना है. नहीं आए तो Inshallah sir. Inshallah. मेरी तो यही कोशिश है, यही दुआ है. मैं लिटरली आप लोगों के लिए बहुत दुआ कर रहा हूँ कि एटलीस्ट जो भी बच्चे हैं ना, थोड़ा बहुत तो भी हेल्प आउट हो जाए उन लोग के लिए एंड रिजल्ट निकल जाए जो बेसिकली रिक्वायरमेंट है. देखो ऑलरेडी जो कोचिंग जा रहे हैं उन लोगों को तो ऑलरेडी सब कुछ मिल रहा है. देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर नॉट गोइंग टू कोचिंग, जिनके लिए अफोर्डेबल नहीं है, तो उन लोगों के लिए बोन है बेसिकली. अब जिनके पास पैसा है वो लोग कोचिंग जा रहे हैं, वहां पर भी सुन रहे हैं, वहां कर रहे हैं, वो अलग बात है. बेसिकली उन लोगों को भी एडेड एडवांटेज है. जो बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, जो घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी एक एडेड एडवांटेज है कि वैसे वाले बच्चे भी थोड़ा बहुत फिजिक्स में एटलीस्ट 50 की जगह 60-70 आ जाए, बायोलॉजी में उनका अच्छा स्कोर हो जाए और केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर आ जाए, आप लोग की सीट आ जाए. दैट्स ओनली माय प्योर इंटेंशन. 2 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ. लास्ट ईयर तो 2 मेडिकल सीट्स बच्चे अच्छे खासे ला लिए, 2 भी मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन किए. ये बार तो बहुत सारे बच्चे हैं ग्रुप में, लेकिन बच्चे शाम में होने के बाद आ नहीं रहे हैं बेसिकली, पता नहीं. लेकिन बट स्टिल जितने भी आ रहे हैं, मेरी तो पर्सनली इंटेंशन यही है कि मैक्सिमम सीट मारे एंड बी मेक योर पेरेंट्स प्राउड. दैट्स ओनली माय
वी आर कंसल्ट फॉर दिस 20 डेज। आप यकीन नहीं करोगे, मेरी तो हेल्थ बहुत ही खराब है, फिर भी मैं एक्चुअली आप लोग की क्लास छोड़ के किसी और को भी देने के बारे में सोच रहा था, पेमेंट देके किसी और टीचर को भी लगाने के चक्कर में था, लेकिन कोई भी आ नहीं रहे थे सामने, तो फिर मेरे को कंटिन्यू करना पड़ रहा। इतना हेल्थ खराब हो गया था मेरा 3-4 दिन पहले बेसिकली। अभी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा ठीक है समझो, अदरवाइज थोड़ा डिले होने का रीजन वही था बेसिकली, ज्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि वर्कलोड बहुत ही ज्यादा हो गया, उससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए नहीं, ये तो हो गया मेरा। 49 का आंसर कोई बोल सकता है क्या? देखो बेटा, 2 heating wires of equal length are first 4:1. parallel to the voltage. The rate of the heat produced will be equal to how much? Very good. First total resistance कौन से कॉम्बिनेशन में बेटा? सीरीज में। 49 यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपको। 2 heating wires of equal length are first connected in series, यानी R effective will become for me how much बेटा? 2R. उसके बाद पैरेलल, तो पैरेलल में जब आ जाएंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास R/2. Then in parallel with constant potential, यानी heat in terms of potential कैसे निकालोगे? V²/R, isn't it? Is it clear? The rate of heat produced in this both of them will be equal to how much? H in series by H in parallel. That means resistance in your parallel divided by resistance in your series. इतना ही लिखोगे ना? Resistance in parallel कितना है? R/2. Resistance in parallel कितना है? 2R. ये R चले गया तो it is 1/4. आया सभी को? Yes, sir. So what is an answer? 1:4 कि 4:1? 4. 1:4. 1:4. Very good. 1:4. Chalo, 50th one. An electrical bulb rated at for 200 watt at 100 volt is used in the circuit having 200 volt supply. The resistance capital R that must be put in series with the bulb so that the bulb draws at 200 watt will be equal to how much? वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। थोड़ा ये पूरे क्वेश्चन में बस यही एक क्वेश्चन है जो आप लोग को थोड़ा टाइम कंज्यूम लेगा। एक तो 26 से थोड़ा टाइम कंज्यूम लगेगा, 25 अगर फॉर्मूला याद नहीं है, अदरवाइज दिस 50th क्वेश्चन। देखो, an electrical bulb is rated for 200 watt at your 100 volt is used in the electrical circuit, यानी रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब कैसे निकालोगे बेटा? R is equals to V² by your power। तो R वैल्यू कितना दे रखा है मेरे पास? पोटेंशियल दे रखा है 100 और पावर दे रखा है 200, तो ये कितना आ गया बेटा? सो इट इज योर 100 into your 100 डिवाइडेड बाय 200, ये और ये चले गया, सो इट इज योर 2 1s 2 5s, यानी ये हो गया मेरे पास 50 ohms रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला? द रेजिस्टेंस कैपिटल R मस्ट बी पुट इन सीरीज विद द बल्ब सो दैट द बल्ब ड्रॉस 200 watt, यानी 200 watt पावर अगर ड्रॉ करना है उसे, तो P is equals to V² by इन सीरीज में क्या होता है कि बेसिकली द न्यू पावर शुड बी, यानी अगर कुछ आप यूज कर रहे हो इन सीरीज, वोल्टेज कितना लगाना है अपने पास? 200 वोल्ट, तो न्यू पावर कितना हो जाएगा वही पूछ रहा है ना। तो रेजिस्टेंस में से आप इंक्रीज करोगे कि डिक्रीज करोगे? कैपिटल R में से अगर आपने रेजिस्टेंस कम किया तो ही पावर ज्यादा होगा ना बेटा, बिकॉज P is equals to V² by your R'। अगर R' आपने बढ़ा दिया तो पावर डिक्रीज हो गया, तो R' को आपको करना क्या है? डिक्रीज करना है। अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ तो पावर इंक्रीज होगा, तो पावर कितना दिया हुआ? 200। पोटेंशियल कितना दे रखा है यहाँ पर? 200 वाट पावर, और पोटेंशियल लगाया उसने 200 वोल्ट, तो इसके अंदर हो गया 200 वोल्ट में हम लोग लगा रहे, तो दिस वन इज योर 200 होल स्क्वायर इनटू इस स्मॉल आर, सम स्मॉल आर में से 50 वैल्यू निकालना। तो ये कितना आ रहा है देखो बेटा? 200 इज इक्वल्स टू 200 इंटू 200। ये बात समझ में आई ना बेटा? स्मॉल आर में से अगर वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकालूं तो ही अपना रेजिस्टेंस कम होगा, अगर ऐड करता तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता, पावर डिक्रीज होता। ठीक है, चलो, तो दिस वन इज R माइनस ऑफ योर 50। देखो कितना आ रहा? स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ रही? एक 200, एक 200 कट हो गया, सो इट इज R माइनस 50 इज इक्वल्स टू 200। ठीक है ना, क्लियर है? Yes, sir. माइनस इधर चले जाएगा तो 250 आ रहा है ना बेटा? 250 है मेरे पास, 200 150 150। बराबर ही क्या ना, रेजिस्टेंस आ गया 50, और मान के चलो दिस R' इज सम रेजिस्टेंस इन सीरीज हम लोग को लगाना है, तो ये R' अगर मैं सीरीज में लगाऊं तो रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो पावर उसका कम हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस अपना कम होना चाहिए। तो आइसो रेजिस्टेंस में क्या कर रहा हूं मैं? R माइनस 50 को निकाल रहा हूं, अगर ये निकल जा रहा है तो ये कट हो जाएगा, बराबर ही है ना? कुछ गलती किया तो स्मॉल r मस्ट बी इक्वल टू योर हाउ मच फॉर मी? 250।
250 तो है ही नहीं यहाँ पर, क्या आंसर दिया? बी 150 200 150 100 250, शायद ये मिस्टेक होगा बेटा, ये 250 होना चाहिए 150। ठीक है, चलो क्लियर है? इज इट क्लियर? जी सर। सो बाय दिस वी हैव डन कंप्लीट करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर से 2-3 बार इस एक्सरसाइज को करो अच्छे साथ, खुद क्वेश्चन है बेटा, ये आपके पास ऑलरेडी आप लोग के क्या बोलते हैं ग्रुप में है, तो रेगुलरली मैं नहीं डालता, रेगुलरली जो भी है फिर एक बार आप लोग निकालो, उसको ही करते रहो एंड रेडीमेडली 2-3 बार इसको करते रहो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पूरे फॉर्मलेस रिवीजन हो रही है इसके अंदर, इसकी हद से ज्यादा नहीं हो रहा, लेकिन किरचॉफ लॉस का एप्लीकेशन हम लोग ने करे नहीं है, वो हम लोग कर लेंगे कभी टाइम मिले जो, फिलहाल के लिए तो इतने पे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन कर लेंगे। ठीक है सर कलर कोडिंग कलर कोडिंग नहीं बताया मैंने? नहीं बताया सर। ठीक है, मैं जल्दी से बता देता हूँ। देखो वो बीबी रॉय वाला ना? हाँ, बीबी रॉय वाला एक बार मैं जल्दी बता देता हूँ, फिर भी है मेरे पास फास्टली, तो आंसर्स भी इसके जल्दी जल्दी बताता हूँ। अभी रिसेंटली मैं अपलोड भी किया था, आप लोग देखे कि नहीं कि? हाँ, कलर कोडिंग देखो बेटा, कलर कोडिंग किस लिए यूज करते हैं? बेसिकली कलर कोडिंग इज यूज्ड फॉर द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। अब बताओ कि आपने पूछा, अगर आप मैं आपको पूछूं कि रेसिस्टेंस के ऊपर वैल्यूज क्यों नहीं लिखते थे? क्योंकि अगर आप रेजिस्टेंस दूर से देखोगे ना तो बहुत छोटा रहता है, अगर उस पर कुछ वैल्यू आप लिखोगे ना बहुत ज्यादा छोटा रहेगा और एक ही साइड से दिखाई देगा। तो इन ऑर्डर टू ओवरकम दैट वन, अगर उसको पूरा कलर कर दे तो दूर से भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर ये रेड है तो शायद ये होगा, ब्लू होगा तो ये होगा बोल के। अगर उस पर नंबरिंग डाल दें तो बहुत नजदीक आके देखना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग उसको पूरा कलर कोडिंग दे देते हैं। तो कलर कोडिंग का कंडीशन देखो, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ, सो बीबी में फर्स्ट वन इज ब्लैक, नेक्स्ट वन इज ब्राउन, और रॉय में आर इज योर रेड, वो इज योर ऑरेंज एंड वाई इज योर येलो। ऑफ को निकाल दो, ग्रेट में जी इज योर ग्रीन, ब्रिटेन में बी इज योर ब्लू, एंड हैड में ये डी को निकाल दो, राइट नाउ फॉर देम पूरा हैड को निकाल दो। वेरी में वी इज नथिंग बट ऑफ योर वायलेट, गुड में जी इज योर ग्रे, एंड वाइफ में हो गया व्हाइट। गोल्ड के लिए आ रहा है तो प्लस आर माइनस 5% टॉलरेंस है, सिल्वर के लिए प्लस आर माइनस 10% टॉलरेंस है, और कुछ भी नहीं दिया तो प्लस आर माइनस 20% टॉलरेंस है। क्लियर है? अब जब नंबरिंग आप लिखते हो बेटा, जीरो से स्टार्ट करना है। बीबी रॉय ऑफ ए ग्रेट ब्रिटेन हैज ए गुड वाइफ, जो भी लिखोगे आप जीरो से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दो, और पावर्स भी जो करते हो मल्टीप्लायर्स, दैट इज 10 टू द पावर ऑफ 0 से स्टार्ट करना है। 10 टू द पावर ऑफ 0, 10 टू द पावर ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबरिंग भी 9 आना है, पावर भी 9 आना है बेसिकली। ठीक है ना? तो आप ऐसा देखो, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया आपको, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग, एक कलर रेजिस्टर दे दिया, पहले येलो, वायलेट, उसके बाद ब्राउन, उसके बाद गोल्ड। येलो मतलब कितना बेटा? देखो येलो मतलब कितना 4, और इसमें देखो फर्स्ट वन क्या रिप्रेजेंट करेगा, कभी भी यहाँ पर मैंने बताया, देखो फर्स्ट जो रिप्रेजेंट करेगा ऑलवेज इट विल रिप्रेजेंट द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, second color will represent me the second significant figure, and third one will be representing me the multiplier, and fourth one will represent me the tolerance. Clear है? Is it clear? Yes sir. Yes sir. Yes, सर लेकिन कभी कभार मतलब किलोस और मतलब सिंबल्स देता देखिए। हाँ, मैं वो बता रहा हूँ, देखो इसका अब अगर वैसा किलोस वगैरह में आ रहा है तो क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन देख लो बेसिकली, येलो, वायलेट, ब्राउन, गोल्ड दे दिया, तो येलो के लिए 7 है, वायलेट के लिए 7 है, 4, येलो के लिए 4 है, वायलेट के लिए 7 है, ब्राउन के लिए मल्टीप्लायर है, दैट इज नथिंग बट 10 टू द पावर ऑफ 1, गोल्ड के लिए प्लस आर माइनस 5%, तो ये हो गया 47 इंटू 10 टू द इंटू 10 प्लस आर माइनस 5%। क्लियर है? उसी तरह से देखो रेड 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 सिल्वर, रेड के लिए कितना है 2, सेकंड के लिए भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर, और रेड के लिए थर्ड वन मल्टीप्लायर है, रेड के लिए मल्टीप्लायर कितना है बेटा 10 टू द पावर ऑफ 2, तो ये हो गया 10 टू द पावर ऑफ 2 प्लस आर माइनस, सिल्वर के लिए टॉलरेंस इज 10%, so 22 into 10 to the power of 2 plus or minus 10%. क्लियर है? Yes sir. Yes sir. देखो ग्रीन, वायलेट, रेड, ग्रीन के लिए 5, वायलेट के लिए 7, और रेड के लिए टॉलरेंस 10 to the power of 2, कुछ भी नहीं दिया तो क्या लोगे आप टॉलरेंस 10 प्लस और माइनस 20%। ठीक है? यस सर। चलो नेक्स्ट वन देखो, इसका आंसर बताओ जल्दी से। रेड, वायलेट, ऑरेंज, सिल्वर, रेड के लिए 2, वायलेट के लिए सिग्निफिकेंट फिगर सेकंड डिजिट रिप्रेजेंट करेगा 7, ऑरेंज के लिए मल्टीप्लायर कितना है 10 टू द पावर ऑफ 3, सिल्वर के लिए प्लस आर माइनस 10%। ठीक है? चलो ये क्वेश्चन का आंसर देखो जल्दी से, कोई बता सकता है? देखो ए 200 ओम रेसिस्टर हैज ए सर्टेन कलर कोड, कितना रेजिस्टेंस है मेरे पास, कितना रेजिस्टेंस है 200. 200 का रेसिस्टर है which is having a certain color code, उसका कुछ कलर कोड है वो नहीं दिया, और उसने बोला कि if one replace the red color by the green in the code then the new resistance will be equal to how much? ठीक है?
200 को पहले कलर कोडिंग लिखना है मुझे, तो कैसे लिख रहा हूँ देखो, ये 200 है, 2 के लिए रेड, 0 के लिए क्या हो जाएगा ब्लैक, और एक 0 के लिए कितना हो जाएगा ब्राउन। क्लियर है? इज इट क्लियर? सर और एक 0 के लिए ब्राउन कैसे? मल्टीप्लायर ना बेटा, ब्लैक के लिए सॉरी ब्लैक है सर। ब्लैक, हाँ ब्लैक, हाँ सर ब्लैक है सर। हाँ ब्लैक सॉरी। सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा फॉर मी, 2 into ब्लैक, ये भी ब्लैक होना चाहिए ना, मल्टीप्लायर। हाँ सर रेड ब्लैक नहीं होना बेटा, चाहिए। देखो ब्राउन होना चाहिए। 200 है ना बेटा, 200 है, थर्ड वन मल्टीप्लायर है, यानी दिस 2 ब्लैक का लिए 0, ये मल्टीप्लायर है 10 power 1, बराबर ही लिखा मैंने 10 power 1, 10 power 1, 10 power 1, तो 10 power 0 लिख दिया तो खाली 20 आता ना बेटा, ठीक है? यस सर। यस सर यस सर। रेड को उसने रिप्लेस कर दिया ग्रीन से, तो उसी के अंदर आपने ग्रीन लिख दिया, ब्लैक एंड ब्राउन, तो ग्रीन के लिए कलर कोडिंग सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 5, सो 5 into 0 into 0 यानी 50 into 10 to the power of 1, तो 500 हो गए, हुआ? यस सर। यस सर। बस समझ में आया? आपको कलर कोडिंग नहीं दिया, खाली रेसिस्टेंस दे दिया, तो उसको हम लोग को क्या बोलते हैं, कलर्स निकालना पड़ेगा। तो ऐसा द मेथड आई हैव बीन शोन यू राइट नाउ हियर, 200 के लिए फर्स्ट वन इज रेड, नेक्स्ट वन इज ब्लैक एंड थर्ड वन इज ब्राउन, क्योंकि थर्ड वन इज रिप्रेजेंटिंग द मल्टीप्लायर, 10 to the power of 1 आना चाहिए ना, ठीक है? जी सर। अब रेड इज रिप्लेस्ड बाय ग्रीन, ग्रीन का सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 5, सो दिस इज योर 500 ohms विल बी द आंसर, ठीक है? यस सर। This we have been even done with your color coding. इसका रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो, अगर होना था इन डिटेल में मैंने रिकॉर्डिंग भी डाली, कल परसों के क्लास में ही डाला है किसी को, तो आप देख सकते हो बेसिकली। और रेसिस्टेंस के भी थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चंस भी मैं रिसेंटली डाला है, तो प्रैक्टिस के लिए एक बार फास्ट मोड में जाके सर आज आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस डाले थे देखिए ग्रुप पे, किस पे 7 to 8 ग्रुप पे क्वेश्चन है 7 to 8। 7 to 8 कौन थे यार? हाँ ग्रुप में सुबह में आज मैंने थोड़े क्वेश्चंस डाला थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी करे कोई? नहीं सर सुबह में नहीं, अभी 8 o'clock 8:30। हाँ सर करे थे, इसमें थोड़ा डाउट है सर, तो पूछ सकते हैं? हाँ बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 10, 12 and 13। कितने भेजा मैंने? 4-5 ही भेजा है ना? वो हाँ सर, वो उसमें कॉन्सेप्ट तो पता है सर, लेकिन जब अप्लाई करें ना तो आंसर नहीं आ रहा। मुझे टेक्स्ट कर दो एक बार फिर वो क्वेश्चंस, ठीक है? ओके सर। और कुछ बेटा? तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ योर करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद क्या करें बेटा? स्टार्ट विथ सेमीकंडक्टर्स, थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट ईयर नहीं बेटा, सेकंड ईयर कर लेते हैं पहले, क्योंकि यस सर। सेकंड ईयर खत्म कर लेते हैं। आज क्या है डेट अपने को? 13 है ना आज डेट क्या है? 13 है। 13 सर। 14, 15, 16, 17 और एक 4-5 दिन के अंदर सेकंड ईयर के बड़े-बड़े चैप्टर्स खत्म करके क्लोज कर लेते हैं। विल गो विद द फर्स्ट ईयर चैप्टर्स, ठीक है? फर्स्ट ईयर की बहुत बार कर चुका हूँ ना बेटा, आप लोग काइनेमेटिक्स भी कर चुके हैं, काइनेमेटिक्स का भी कर चुके हैं, वेक्टर्स कर चुका हूँ, और इलास्टिसिटी वगैरह छोटे-छोटे चैप्टर्स है वो मैं कर दूंगा एक हफ्ते 10 दिन के अंदर, ठीक है? और ग्रैंड टेस्ट भी लिखना है बेटा, मैं 20 ग्रैंड टेस्ट पेपर्स डिस्कस करना है, वो कब करना है कि क्या है मुझे यही, ठीक है? चलो देखते हैं जैसा हो सकता है वैसे, ठीक है? बाय बेटा। जी सर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।